Jai Hind everybody, welcome to biology class 9th. So as you all know, we have already started the chapter tissue. So in the last lecture we have discussed about the plant tissue. So as you all know, the tissues are the group of a group of cells which are specialized to perform a definite function. And there are two types of tissues, that is animal tissue and plant tissue. We have already discussed about the plant tissue and the types of the plant tissue, their location, their function. Now in this lecture we will discuss about the animal tissue. So now uh, one question. Now what you feel when you breathe? When we breathe, what do you feel? जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हम फील करते हैं अपने चेस्ट जो है, चेस्ट का मूवमेंट फील करते हैं. चेस्ट होता है दैट मूव्स आउटवर्ड. ओके, जब हम इन्हेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं देन इट मूव्स इनवर्ड. सो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, इनवर्ड्स और आउटवर्ड मूवमेंट होता है, ये क्या है? ये वाई दिस मूवमेंट अकर? इट इज़ ड्यू टू द टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन आर बॉडी. सो क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं और ये मसल्स जो हैं मूव करते हैं. और जब ये मूव करते हैं वी कैन फील द मूवमेंट ऑल्सो. ओके, नाउ इन द सेम वे व्हेन वी ब्रीथ, so what happen? We inhale oxygen and now this oxygen is transported through blood. This oxygen is first that oxygen goes to lungs and from there it is transported to blood to the various organs. Okay, so now this blood again, what it is doing? It is transporting. It also transport food material, it also transport waste substances. तो blood भी जो है transportation का काम करता है. So blood is also a type of tissue. So here you have seen both when we are inhaling the air or exhaling the air, so movement of chest you have seen. Okay, so here both blood and muscles, they are both the examples of the tissues which are found in our body. So on the basis of the function and on the basis of the location, there are different types of animal tissues which are present in our body. So there are four main types of blood tissues, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So we will be discussing one by one the different types of tissues, the function they perform and where they are found in animal cell. Okay, in animal body. Now the first, let's start with epithelial tissue. Okay, so epithelial tissue है, it forms the protective covering जिसको हम बोलते हैं epithelium. It forms the protective covering which is as a continuous sheath. ठीक है, कॉन्टिन्यूस शीट का मतलब क्या है? एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे हम स्किन की बात करें, स्किन क्या है? हमारी बॉडी को पूरा कवर करती है. ठीक है, ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है. सो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. पहली बात तो ये प्रोटेक्टिव होते हैं और ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं एज अ कॉन्टिन्यूस शीट. और ये जो है बहुत थिन लेयर होती है, एक्सट्रीमली थिन लेयर होती है. और ये वन लेयर की भी हो सकती है, सिंगल लेयर ऑल्सो, एंड कंपोज्ड ऑफ बहुत सारी लेयर्स भी हो सकती है, मैनी लेयर्स. जब ये एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होता है तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. तब हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. एंड दिस एपिथेलियल टिश्यू इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. ऑर्गन्स को भी ये कवर करता है, जो भी कैविटीज़ होती हैं, इट ऑल्सो कवर्स दैट. एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. और अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को ये सेपरेट भी करता है. लाइक यू नो, इन आवर बॉडी many types of systems are present: digestive system, excretory system, circulatory system, respiratory system. तो सबको ये अलग अलग करता है, सेपरेट करता है. it acts as a barrier. Okay, so now depending on the shape and function, this epithelial tissue is again divided into various types. Now first is your squamous epithelium.
Now this squamous epithelium is present in the lining of mouth and esophagus. Mouth और esophagus की जो lining होती है, जो outer covering होती है, that is covered by a squamous epithelium. ये जो टिश्यूज़ हैं थिन होते हैं बिल्कुल, एंड दे आर फ्लैट होता है इनका स्ट्रक्चर, दे आर फ्लैट, एंड देन these are found in the cells lining blood vessels and lung alveoli. So these are also found in the cells जो कि blood vessels और lung alveoli की जो lining होती है उसमें भी ये present होते हैं. Now skin, as you all know, skin में भी epithelial tissues ही present होते हैं, but if you talk about in स्किन में ये बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट होता है. अभी जो हमने बात की सब में सिंगल लेयर था, तो वी विल से स्क्वैमोस एपिथेलियम सिंपल. बट स्किन की बात करें तो इसमें ये बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होता है स्क्वैमोस एपिथेलियम, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू. ओके, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू. Now next is your cuboidal epithelium. Now as the name suggests, cuboidal, that means the cells are cube in shape. The cells which form the cuboidal epithelium, they are cube in shape and they are present in the lining of kidney tubules and salivary glands. ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस tissue is to provide mechanical support. Now this epithelial tissue, it is very very important because in exam इसका एक 5 marks का पूरा क्वेश्चन आता है कि they asked about the different body organs और उसमें कौन से tissues present है. So that is very important. So you should remember the function also and especially the location where it is found. ओके, सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम. एज द नेम सजेस्ट, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, लंबे लंबे टॉल सेल्स होते हैं, पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन बेसिकली होता है. ओके, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा हो या सिक्रीशन हो, दैट मीन्स कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. ओके, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में ये पाए जाते हैं. एज यू ऑल नो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ओके फूड सब्सटेंसेस का. एंड इफ़ दिस कॉलमनर एपिथेलियम आर, इफ़ सीलिया इज़ प्रेजेंट, अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, देन व्हाट हैपन्स? देन इनको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. देन इट इज़ नोन एज सीलिएटेड. इनके सर्फेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ नोन एज cilia. If cilia is present, then they are known as ciliated epithelium. Now the last type of this epithelial tissue is your glandular epithelium. As the name suggests, glands, ये glands associated होते हैं. These epithelial cells, they often acquire additional specialization. ये जो epithelial cells होते हैं ये specialized हो जाते हैं as a gland cell. और अगर ग्लैंड्स हैं तो दैट मीन्स कि इनमें कुछ सिक्रीशन भी होगा. ओके, सो विच सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सर्फेस, और ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं. ओके, सो नाउ यू कैन सी इन द फिगर, आई विल शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो दिस, नाउ लेट्स हैव अ लुक. नाउ दिस इज द फर्स्ट वन इज योर स्क्वैमोस एपिथेलियम. नाउ यू कैन से ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल और फ्लैट सेल्स हैं, तो ये स्क्वैमोस एपिथेलियम हो गया. अब यही जब बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट होगा इन दिस वे, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी लेयर्स, then it is known as stratified squamous epithelium. Now the second one, this is your cuboidal epithelium. You can see ये cube like इसमें cells present हैं. Okay, now the next is your columnar epithelium. Now here you can say these are the column like structures. ये बड़े बड़े pillar like structures हैं जो कि columnar epithelial tissue बनाते हैं. और कभी कभी जब इनके ऊपर hairs present होते हैं, यहाँ पे ये हेयरी स्ट्रक्चर जब यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर
This is about your epithelial tissue. Now we will start with the next tissue, that is connective tissue. Now as the name suggests, कनेक्ट करना. कनेक्ट किसको करना? एक ऑर्गन को दूसरे से कनेक्ट करना. अब क्योंकि एज यू ऑल नो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और सब कुछ एक दूसरे से, सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं. तो कनेक्टेड किससे होते हैं? दैट इज़ योर ब्लड. ब्लड ही जो ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे पूरे बॉडी में मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू ऑल द पार्ट्स. और इन दिस वे सारे जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं. Okay, so the cells of the connective tissue, they are loosely spaced and they are embedded in an intercellular matrix. ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ओके, जो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं. दैट मीन्स उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. जो भी स्पेस होती है ऑर्गन्स के बीच में या डिफरेंट पार्ट्स के बीच में स्पेस होती है, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे ये सेल्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकती है, जेली लाइक भी हो सकती है, डेंस भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है. नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट इज़ योर ब्लड. ओके, नाउ यू ऑल हैव सीन अ ब्लड. ब्लड सबने देखा है. ब्लड इज़ अ फ्लूइड. इट इज़ अ फ्लूइड. ये एक लिक्विड है. ओके, तो इसकी जो मैट्रिक्स हो गई ये कैसी हो गई? लिक्विड हो गई. ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा में ये ब्लड जो है प्रेजेंट रहता है. और इसमें और क्या क्या होता है ब्लड में? WBCs आर प्रेजेंट, RBCs एंड प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. नाउ दिस प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. Okay, so these are also found in your blood. Now the main function of blood is to transport the gases, then digested food, hormones and the waste material which is produced from the different parts of the body, that is also transported through blood. So blood is it is a very important connective tissue you can say. और ये सारे organs को connect करता है and it supply food also to different organ. और जो भी वहाँ से वेस्ट निकलता है, ऑर्गन्स जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो भी फाइनली ब्लड में आ जाता है. एंड देन ब्लड गोज़ टू द किडनी फॉर प्यूरिफिकेशन और टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. सो ये है ब्लड का. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स. बोन्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं एज यू ऑल नो. और बोन्स का मेन वर्क क्या होता है? इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क बॉडी का बनाते हैं और इस तरह ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं. ये फ्रेमवर्क देते हैं, एक ढांचा देते हैं. लाइक यू ऑल हैव सीन द स्केलेटन. स्केलेटन सबने देखा है. तो अगर हम स्केलेटन ना हो बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ना हो तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है बिल्कुल एक लंप की तरह, एक ग्रुप ऑफ जो मास होता है सेल्स के मास की तरह, और वो ज़मीन पे पड़ी रहेगी. मीन्स यू विल नॉट एबल टू स्टैंड, यू विल नॉट एबल टू वॉक. एक मास के लोथड़े की तरह वो जो है ज़मीन में पड़ी रहेगी. सो जो बोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ दीज टिश्यू, ये जो बोन्स होते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प टू एंकर द मसल्स. ये मसल्स को भी एंकर करने में हेल्प करते हैं. जो मसल्स होती हैं वो इनसे बोन से जाके अटैच हो जाती हैं. एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ इनफ्लेक्सिबल टिश्यू. ये स्ट्रॉन्ग होता है और इनफ्लेक्सिबल भी मीन्स कोई भी इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है. एंड द मैट्रिक्स इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेरी हार्ड मैट्रिक्स. इसका मैट्रिक्स जो है बहुत हार्ड. ये जो बोन सेल्स होते हैं दे आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. ठीक है. एंड दिस मैट्रिक्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. इससे पहले हमने पढ़ा था लिक्विड मैट्रिक्स थी ब्लड में जिसको हमने प्लाज्मा बोला था. इसमें जो है बोन्स में हार्ड मैट्रिक्स होती है और ये बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की.
नाउ जब टू बोन्स जो हैं, दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हमने एक और नाम दिया है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट. सो वील बी आप कुछ बुक्स में ये अलग अलग देखेंगे, बट वील बी गोइंग टू स्टडी इन बोन्स ओनली. जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट. और ये जो लिगामेंट है ये बहुत इलास्टिक होता है. ओके, एंड इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. और इस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है. ओके, एंड लिगामेंट जो है इसमें मैट्रिक्स भी बहुत थोड़ी सी होती है. नाउ इफ़ द मसल्स इफ़ द योर टू बोन्स लाइक कनेक्टेड टू ईच अदर, तो हमने उसको लिगामेंट दिया. लेकिन अगर जो है मसल्स जो हैं वो बोन से कनेक्टेड हैं, ओके, तो हम उसको बोलते हैं टेंडन. सो हेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन. तो यू शुड नो टेंडन्स जो हैं वो मसल्स टू बोन कनेक्ट करती हैं, लिगामेंट्स जो हैं बोन्स टू बोन कनेक्ट करती हैं. ओके, सो दिस you should remember, very important. So tendons, they connect muscles to bone, and it is again another type of connective tissue. And these tendons, they are fibrous tissues. ये fibrous होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, इसीलिए इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये फाइब्रस सब्सटेंस के बने होते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ. ओके, नाउ दिस इज़ अबाउट योर tendon and ligaments. Now coming to the next connective tissue, that is your cartilage. अब हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कार्टिलेज. इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज. एंड दिस कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस सेल, मीन्स इसमें जो सेल्स होती हैं बहुत दूर दूर प्रेजेंट होती हैं, तो बहुत लूज़ होता है, यू कैन से. और इसमें भी जो मैट्रिक्स होता है दैट इज़ अ सॉलिड मैट्रिक्स, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. तो इसका मैट्रिक्स जो है प्रोटीन और शुगर का बना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वेयर कार्टिलेज इज़ फाउंड, एज यू कैन सी, हम अगर अपने कान को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, नोज़ को मूव कर सकते हैं. सो वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लेक्सिबल कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू. इसी वजह से कान के जो आपका पिन्ना होता है, कान का आउटर ईयर होता है, उसको आप इजीली मूव कर सकते हो. नोज़ को भी हम मूव कर सकते हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन नोज़, ईयर. देन हमारा जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, लैरिंग्स, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है. नाउ वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर. Okay, we can easily fold, that I have already told you. And we can bend the bones in our arms also. जो बोन्स होती हैं, बोन्स को भी हम बेंड कर सकते हैं, क्योंकि दो बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई. Now the next type of connective tissue is your arterial connective tissue. Now arterial connective tissue, it is found in between the skin and muscles, and also around the blood vessels. ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एक तरह से ये स्पेस को फिल करता है, इसलिए इसको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं. और ब्लड वेसल्स के भी चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू. सो जो भी ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होती है ये फिल करता है, इसीलिए मैंने बताया इसको पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है. इस तरह ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, क्योंकि ये चारों तरफ उसके एक कवच की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह. एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. नाउ नेक्स्ट इज़ योर adipose connective tissue. This is the last type of connective tissue, and this connective tissue, they are filled with fat globules for the storage of fat. ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इसमें फ़ैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ़ैट को स्टोर करते हैं. ओके, और ये इसका मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे स्किन के नीचे, जहाँ जहाँ फ़ैट डिपॉजिट होगा हमारी बॉडी में, वहाँ वहाँ ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा. तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, स्किन में प्रेजेंट होगा, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो. जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, उनके बीच में भी ये पाया जाएगा. ओके, नाउ द मेन फंक्शन इज़, एक तो है फैट का स्टोरेज, सेकेंड इज़ टू एक्ट एज एन इंसुलेटर. ये इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है. ओके,
नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब मस्कुलर टिश्यू. नाउ मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर. ओके, मसल्स फाइबर से ये बने होते हैं एंड दीज मसल फाइबर दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन. और ये प्रोटीन हेल्प करता है मूवमेंट में. एज यू मस्ट हैव सीन, हम जब हम चलते हैं या हम अपने हाथ को भी बेंड कर सकते हैं, पैरों को बेंड कर सकते हैं. तो ये जो बेंडिंग होती है इट इज़ ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. नाउ मस्कुलर टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. नाउ अब हम एक एक के बारे में समझे पढ़ेंगे. स्ट्रेटेड क्या होता है? इसको स्केलेटल टिश्यू भी और वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं बिकॉज दिस टिश्यू इज़ द मूवमेंट ऑफ सच टिश्यूज़ इन आर विल. हमारे में होता है, हम जैसे चाहें इसको मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है. दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड दे हैव light and dark bands which is made up of actin and myosin protein. इनमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन